So today's topic was significance of colors, and by the adjectives, uh, our participants have created some of the sentences. So first, Kostov will tell his sentences based on the colors. Pink is a beautiful color. Okay, The plants are green. okay, The sky is blue. okay. So Arinjay now will tell his sentences based on the colors. So hello, my name is Arinjay Samanta, and the three colors which I had chosen are yellow, green, and white. So I am going to tell the three sentences based on each color. So first, I am starting with yellow. Young people are strong and healthy, so they are mostly happy and free from dangerous diseases. So this was my first sentence. Now my second sentence is from the green color. So green color, I am telling, if we visit a forest, we can see many natural things, animals, etc., and it will be very healing and refreshing for one who visits a forest. So this was my second sentence, and my last or third sentence, but not the least, is of white color. So this is a long sentence. I have means uh, used. I have written two sentences from the color white. So the first sentence is, a true Vaishnav should be innocent and simple and should be pure from his mind and soul. And now the second sentence is, he or she should lead a simple life and be the devotee of Vaishnav gods like Vishnu, Ram, etc. to attain salvation. Thank you. So this was my three colors which I have made simple sentences. So our next project was searching a flag and giving the significance of different colors on it. So first Arinja will tell his flags and colors chosen by him. Okay, so my name is Arinjay Samanta of class 7th. So now I am going to tell you which three colors I have chosen and which countries I have chosen for each color. So first I am telling that. So the three colors which I have chosen is green, yellow, and white. So green color country I have chosen means the country which has green color as a part of its flag is India, green India, and yellow Vietnam, white Japan. So now I am going to tell you the significance. So first let us start with India. So green color in the Indian flag or our Indian national flag indicates greenery या हिंदी में जिसको हम कहते हैं हरियाली एंड द ग्रोथ एंड ऑल्सो सत्य का प्रतीक है मतलब कि हरियाली का प्रतीक है और मतलब कितना जैसे फर्टिलिटी दैट ऑल इट इज टेल्स अस एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वियतनाम्स yellow color significance. So the yellow color, the yellow star in the Vietnam's flag represents the five main classes in Vietnam society: intellectuals, farmers, workers, entrepreneurs, and soldiers. So now the last but not the least, I am going to tell you the significance of white color in Japan's flag, so Japan's national flag. So the white color in the Japan's national flag is a symbol of integrity and honesty of the people. So this was my three colors and the three countries flag which I have chosen. So thank you. मैंने एक ही flag. I Oh, have choose one flag of my country, India. The green color represent greenery, and white color represent peace and and there is the saffron color. then is the saffron color. Which indicates the prosperity and integrity of the country. Okay. Thank you. Also, you are on mute.
गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज अरिंजय सामंता और मैं आज आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप जो कि हिस्ट्री में बहुत फेमस है, यानी कि जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध बहुत से युद्ध लड़े और वो मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। तो मैं अभी उनके ऊपर एक छोटा सा रोल प्ले करने का प्रयास करूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा मैं ट्रेलर दूंगा, थोड़ा सा रोल प्ले करूंगा। तो महाराणा प्रताप का जन्म राजपुताने में मेवाड़ राज्य में हुआ था सन 9 मई 1540 को। ये बचपन से ही बहुत तेज थे और बहुत वीर थे और काफी बुद्धिमान भी थे। बड़े होते होते इन्होंने कई अस्त्रों और शस्त्रों का विद्या ग्रहण किया और ये उसमें काफी ज्यादा माहिर हो गए। और इन्होंने बचपन से ही छोटे मोटे युद्ध लड़ना शुरू कर दिए थे, जैसे कि अफगानों वगैरह के साथ। और ये बहुत संस्कारी भी थे छोटे से और हमेशा अपने बड़ों की बात मानते थे। तो इनका धीरे धीरे मतलब जैसे बड़े होते गए तो धीरे धीरे कई राजपूत राजाएं मुगलों के जैसे अंडर में हो गए, यानी कि उनके अधीन में आने लग गए। और महाराणा प्रताप कभी भी मुगलों के आगे मतलब सर नहीं झुकाते थे। उनके पिता उदय सिंह भी कभी भी मुगलों के आगे सर नहीं झुकाए पूरे जीवन में। तो इसी को देखते हुए अकबर ने एक बार चित्तौड़ पर हमला किया और उन्होंने अपना बल का प्रयोग करके मुगलों ने अपना अधिकार चित्तौड़ पर स्थापित कर लिया। इसे देख कई राजपूत राजाएं, जो कि यानी कि बाकी थे, ज्यादातर राजपूत राजाएं ही मुगलों के अधीन में आ गई। पर प्रताप और उदय सिंह चित्तौड़ से तो बच निकले और महाराणा प्रताप ने अपना यानी कि समय देकर अपना बल जो है परिश्रम से, अपने श्रम से उदयपुर की स्थापना की। और इसे और मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप का बहुत यानी कि क्रोध बढ़ गया इसे देख। और वे यानी कि कभी भी सर नहीं झुकाते थे मुगलों के आगे, जैसे कि मैंने बोला। तो इसी को देखते हुए मुगलों ने उदयपुर पर भी हमला करने की कोशिश की, पर उदयपुर के आसपास काफी सारे घाट पहाड़ आदि थे। तो इसलिए उन्होंने हल्दी घाटी पर के आसपास यानी कि हमला करने का जो है उन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि हल्दी घाटी उदयपुर का अंतिम सुरक्षा द्वार था। तो इसी को इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है और ये भारत का सबसे भीषण युद्ध था। और महाराणा प्रताप ने इसमें बहुत लड़े, बहुत यानी कि वीरता इसमें दिखाई थी। तो मैं अभी आपको महाराणा प्रताप का एक रोल प्ले करके दिखाता हूँ। अरे मुगल, तूने हमारे पवित्र मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव रखकर इसे दूषित कर दिया है। हम आगरा पर आक्रमण नहीं किए हैं, तू ही हमारे यहाँ पर आकर आक्रमण कर रहा है। इसलिए भला यही होगा कि यहाँ से चले जा, वरना हम तुझे इसका सबक अवश्य सिखाएंगे। तो आपको इस रोल प्ले से थोड़ा समझ आ गया होगा कि जो महाराणा प्रताप यानी कि काफी वीर थे और ये अपने मातृभूमि के प्रति भी काफी ज्यादा जो है प्रेम दिखाते थे। इनको अपने मातृभूमि के साथ भी काफी ज्यादा लगाव था। और उन मुगलों ने उनके मातृभूमि पर पांव रखा था, तो इसी के चलते उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध किए। उसमें से सबसे प्रमुख वही हल्दी घाटी का युद्ध है। उसमें हालांकि मुगलों ने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि वो काफी ज्यादा बलशाली थे। पर महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व उसमें न्यौछावर कर दिया। और क्योंकि उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े थे तो उनके काफी ज्यादा घाव थे और एक बार उनको शिकार में काफी बड़ा घाव लगा, तो इसी को चलते उनकी मृत्यु भी हो गई। पर उसके बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का काफी ज्यादा जो है नाम है और यानी कि सुनाम है लोगों का, और वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो कंक्लूजन में हम कुछ महाराणा प्रताप के जो है आदर्श या मैनर्स हम अपने जीवन में उतार सकते हैं।
ऐसे उनकी वीरता और उनके मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव जो कि हम सब में होना चाहिए। जब भी हमारे मातृभूमि पर संकट आए, हमें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। जैसे जब भी उनके मातृभूमि पर संकट आता था तो वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते थे, और भी हम उनसे सीख सकते हैं, जैसे कि वो बहुत संस्कारी थे। तो इसी के चलते महाराणा प्रताप को भगवान का कोई कोई अवतार भी मानते हैं उनके वहां पर, और वो एक बहुत ही प्रमुख हिस्ट्री में उनका नाम है। तो ये एक छोटा सा मैंने रोल प्ले और महाराणा प्रताप के बारे में बताने का कोशिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। सो समृद्धि इज गोइंग टू डू हर रोल प्ले नाउ। सो समृद्धि, आप अपना रोल प्ले शुरू कर सकते हो। मैं समृद्धि कावड़े। मैं आज सावित्रीबाई फुले इनके बारे में कहना चाहूंगी। मैं वह सावित्रीबाई फुले यह हमारे भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी, और उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी। और उनके स्कूल में पहले दिन से सिर्फ 6 लड़कियों ने प्रवेश किया था, और बाकी सब वहाँ के ज्यादातर लोगों का उनके स्कूल जाने पर विरोध था। वो जहाँ के स्कूल में पढ़ाने जाती थी, वहाँ के लोगों को उनका लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं लग रहा था। वह उनको विरोध करते थे, पर उन्होंने स्कूल जाने से भी रोकते थे। पर उन्होंने उन लोगों की तरफ ध्यान न देकर रोज स्कूल में जाना पसंद किया, और लड़कियों को पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया। यह सब उन्होंने ज्योतिबा फुले जी के मदद से ही किया। सावित्रीबाई फुले यह रोज स्कूल में जाते समय बहुत से लोग उन्हें स्कूल में जाने से रोकते थे, पर वह उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और रोज स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी। उनकी वजह से ही आज बहुत सी लड़कियों को स्कूल में जाने का मौका मिलता है। इसी तरह वह हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका और पहली मुख्याध्यापिका बनी थी। उनको बहुत से लोग विरोध करते थे, पर उन्होंने कभी उनके विरोध में कुछ नहीं कहा, और वह अपना काम करती रही। उनके इस कार्य से हमें यह संदेश मिलता है कि हमने जो फैसला कर लिया, उस फैसले से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया था, उसी तरह हमने हमारे जीवन में कोई भी फैसला लिया तो हमें उस फैसले से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। Okay, thank you, Samruddhi. Very good. So now Abir is going to do his role play. So Abir, you can start your role play. हाँ, नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आबिर सना आज सबको एक महान राष्ट्रपति की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन
हमारे भारत के ये सबसे दूसरे प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति। उनके कैबिनेट में एक महान प्रधानमंत्री भी था जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वह 1962 से लेकर 1960-70 तक वह राष्ट्रपति थे। आइए सुनते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 5 सितंबर 1818 तिरुतनी में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई उनके माँ बाप सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीताम्मा थे। उनकी शिक्षा सन 1900 से लेकर 1904 तक वुरहीज कॉलेज में हुआ था। फिर 1904 के बाद वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उनका शिक्षा हुआ था। थोड़े कुछ सालों बाद राधा कृष्णन जी को भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में प्रोफेसरशिप मिली थी जब वह 39 वर्ष के थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे, और ऐसा कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी शादी शिवाकामो राधाकृष्णन से हुई थी 1904 में। न- 1904 में हुई थी, पर 1956 में उनकी देहांत हुई थी। वो राष्ट्रपति बने तब वो 1952 से लेकर 1967 तक वो राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के पद के दौरान राधाकृष्णन जी भी किताबें लिखते थे, जैसे इंडियन फिलोसफी 1923 में, इंडियन फिलोसफी, भगवत गीता 1948 और सत्य का खोज 1958। राष्ट्रपति के पद के दौरान भी वो सोवियत संघ के दूत में थे, मतलब अम्बेसडर, जिनसे उनको बहुत फायदा मिला। राधाकृष्णन जी को भारत रत्न, पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड और टेम्पल्टन पुरस्कार भी मिला। टेम्पल्टन पुरस्कार उनको 1975 में मिला था। हाँ, 1975 से याद आया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देहांत हुआ था, वो भी मद्रास में 17 अप्रैल को। आजकल हमें याद आती, अगर हम एक महान दिग्गज के बारे में सुने तो हम सिर्फ शाहरुख खान, मोदी, उनके बारे में सोचते हैं, पर एक आदमी है जो उनसे बहुत अधिक है, वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 17 अप्रैल को टीचर्स डे मनाया जाता है। उनका एक कोट भी है, Books are the means by which we build bridges between centuries. मेरे हिसाब से वो अच्छे राष्ट्रपति है, पर हमारे इतिहास में उनका नाम रह जाएगा। थैंक यू। Well try.